Hello students, this is Dr. Mohammad Ali and I will be teaching you this course electric power generation and utilization. So this is the first lecture and as discussed earlier I will be dealing with the second unit. तो second unit में आपका hydroelectric power plants और gas based power plants हैं. So in this lecture we will be dealing with the hydroelectric power plant. तो इसका ब्रीफ सब सेक्शंस ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कितनी हमारे पास पावर अवेलेबल हो सकती है थ्रू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दैट will be there when we will install the hydroelectric power plant. Then what should be the good site selection procedure. ठीक है कि कौन सी ऐसी जगह ढूंढी जाए जहाँ पे हम अपना हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंस्टॉल करें. What are the essential components of hydroelectric power plant that we will discuss. Then and after that we will classify these power plants based on different parameters. For example, height कितनी है डैम की, दूसरी चीज़ टर्बाइन किस तरीके का यूज़ हो रहा है. नाउ बेस्ड ऑन द टर्बाइंस ऑल्सो वी आर हैविंग different types of classification of turbines. So turbine is an important discussion that we will do later on. So as we can see over here, in hydroelectric power plant the energy of the water is utilized to drive the turbine, which in turn runs the generator to produce electricity. तो जो energy water की जो energy है, that means water is basically at a height. When something is at a height, it is having potential energy. Then we make it fall to a certain level, then the potential energy completely converts into kinetic energy. So this is basically the conversion inside the mechanical energy. We then convert this mechanical energy into electrical energy by running the turbines. The turbine in turn rotates the shaft of the generator, which is the three-phase alternator, and in the result we get the electricity. Then the electricity is then transmitted through the transformers on the later stage. So let us consider over here a mass. Okay, let us consider this mass. हमारे पास एक मास है जो कि mkg का है. If we keep it at a height, there will be a potential energy of mgh, where g is the acceleration due to gravity in meter per second square. अब हम ये कंसिडर करते हैं कि एक हमारे पास मास है वाटर का, that is moving, that is a mass flow rate. That means a mass flow rate of q meter cube per second. That means the flow of this is q meter cube per second. एक मास है वाटर का जो कि फ्लो कर रहा है q मीटर क्यूब पर सेकेंड से. तो एक सेकेंड के अंदर q मीटर क्यूब वो फ्लो कर जाएगा. और डेंसिटी अगर हमें पता है देन वी कैन फाइंड आउट द मास एज q इंटू रो और द वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि एक सेकेंड का जो वॉल्यूम होगा वो Q होने वाला है. ठीक है. सो द एनर्जी इन दिस और द पावर वी कैन से, बिकॉज द पावर वी हैव दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम. ओके, तो एक सेकेंड कम ले रहे हैं तो एनर्जी और पावर तकरीबन वो सेम ही होगी. तो दैट विल बी, दैट मीन्स द हाइड्रोलिक पावर, लेट मी राइट इट डाउन, हाइड्रोलिक पावर or the power in the fluid is nothing but q rho gh in terms in watts. Okay, now जब इस एनर्जी को या पावर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बीच में दो चीजें और आएंगी मोटी मोटी, दैट विल बी टर्बाइन एंड जनरेटर, और उनकी एफिशिएंसी को हमें इंक्लूड करना होगा. देन वी विल गेट द इलेक्ट्रिकल पावर that is available at the output of the generator. So let us consider that the efficiency of the turbine is eta T and efficiency of the generator is eta G. तो हम इन दोनों की efficiency को multiply करते हैं तो हमें total efficiency हमें मिल जाएगी. Then we can calculate that the electrical power that is available to us is nothing but q rho gh into efficiency. तो electrical energy basically हम इससे derive कर सकते हैं by multiplying it with the time. Now we can convert it into kilowatt hour again, right? यहाँ पे तो ये this is in watts, we can convert it into kilowatt hour.
by simple calculations that you all know, that you have studied in your previous classes. तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या डिफाइन किया है, वी हैव डिफाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू अस in terms of the water mass, or the mass and volume and density of the water body available to fall from a height h. Now अब अच्छा ये h है, the height basically, यहाँ पे मैं mid of this mass ले रहा हूँ, ठीक है. Normally the height or the most of prominent term आएगा आगे, that is known as the head. Head जो होता है वो टॉप से लिया जाता है, ओके, टॉप से लिया जाता है. ना हाइट यहाँ से कैलकुलेट करनी चाहिए, या यहाँ से कैलकुलेट करनी चाहिए, या यहाँ से कैलकुलेट करनी चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. वी आर कंसिडरिंग राइट नाउ एट द मिड पॉइंट, ओके, वी आर कंसिडरिंग अ मिड पॉइंट ओवर हियर. नॉर्मली हेड जो कंसिडर किया जाता है दैट इज द टॉप ऑफ द डैम. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस कि मेरे पास एक डैम है, ठीक है, तो ये जहाँ तक पानी मेरे पास अवेलेबल होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ तक पानी अवेलेबल रखना है मुझे, दिस विल बी दी, और मैं इसको फॉल कराता हूँ एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी दी हेड, ओके. ये आपका डैम है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी पास दी वाटर थ्रू दिस कैनाल और दी वी कैन से कंडक्ट, ठीक है. कंडक्ट मतलब कंडक्ट जो होती है वो पाइप होता है बेसिकली, थ्रू विच वी आर फ्लोइंग द वाटर थ्रू द डैम. पाइपलाइंस बिछी हुई होती हैं जो कि फिर नीचे की तरफ लेके जाती हैं, जिसको हम आगे चल के बताएंगे कि पेन स्टॉक कहलाता है. लेट अस नॉट डिस्कस इट राइट नाउ, लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट, ठीक है. नाउ आपको इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर यू मस्ट नो what is the, in order to appreciate the potential of water and the energy that water has, you must know the data, because world has now explored this technology to a great extent. तो world की क्या capacity है in terms of hydro power plants, इंडिया की कैपेसिटी है वो पता होनी चाहिए. इंडिया का फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे था और कितनी उसकी कैपेसिटी थी. वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा था और उसकी क्या कैपेसिटी थी, ठीक है. हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग पावर थ्रू हाइड्रो पावर प्लांट चाइना है इस टाइम, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है. और परसेंटेज के टर्म्स में भी हमें पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल इफ इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 370 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी जनरेशन, तो उसका कितना परसेंट गीगावाट हमारा हाइड्रो पावर प्लांट से आ रहा है. फर्दर क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए कि हम कितना परसेंटेज जो है वो लार्ज पावर प्लांट से आ रहा है, कितना मीडियम पावर प्लांट से आ रहा है, और कितना स्मॉल पावर प्लांट से आ रहा है, क्योंकि ये भी क्लासिफिकेशन है हाइड्रो पावर प्लांट्स की कि दे आर क्लासिफाइड एज लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, ओके. नाउ कमिंग टू व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द वाटर पावर और टू अचीव द पावर थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. लेट मी जूम इट आउट अ बिट फॉर यू. तो इसके कुछ इनहेरेंट एडवांटेज होते हैं जो कि इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका जो सोर्स है दैट इज द वाटर दैट इज कंटिन्यूसली अवेलेबल एंड दैट इज अवेलेबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है. ऐसा नहीं है कि कोल की तरह कि वो 100 साल में या 80 साल में खत्म होने वाला है, ठीक है. न्यूक्लियर पावर के साथ भी यही दिक्कत है. सो वी आर हैविंग अ सोर्स दैट इज देयर फॉर लॉन्ग, ओके. और इसलिए इसको एक टर्म दिया गया इंजीनियर्स ने, व्हाइट कोल, ओके. सेकेंड एडवांटेज ये है कि द रनिंग कॉस्ट इज लो. वंस इट इज इंस्टॉल्ड, इंस्टॉलेशन का डेफिनेटली कॉस्ट अच्छी खासी आती है, ठीक है, और उसकी डिसएडवांटेजेस में से आ जाता है जो कि हम आगे देखेंगे. लेकिन रनिंग कॉस्ट इज वेरी लो. क्यों? क्योंकि पहली चीज कि आपका सोर्स जो है दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री. सेकेंड, you don't have to worry about carrying the fuel from one point to the other, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू, हमारे पास यहाँ पे हरदोगंज का पावर प्लांट है, राइट. इफ आई वांट कोल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू हियर, वी हैव टू, द कोल हैज टू ट्रेवल फ्रॉम रांची, फ्रॉम द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज बीन एक्सट्रैक्टेड, द माइंस, टू दिस प्लेस, राइट. This cost plus purifying that coal and everything, pulverizing the coal and all this takes cost.
सो ये सारी की सारी कॉस्ट यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, निगलेक्ट हो जाती हैं. वी आर हैविंग ए सोर्स or the fuel as water over here and we need not transport it. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कि बहुत ज़्यादा होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है. थर्ड थिंग इज दैट इन थर्मल पावर प्लांट स्पेशली ऐश प्रोड्यूस होता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस और कार्बन मोनोऑक्साइड्स ये सब जो है मिलके व्हेन दे इंटरेक्ट विद रेन दे फॉर्म एसिड रेन्स. ठीक है, ये आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा. देन ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंक्रीमेंट हो जाता है. ओके, जिससे हमारे एरिया की जो हमारे इलाके की गर्मी बढ़ जाती है और उससे कितने एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं वी ऑल नो. ओके, सो द प्रॉब्लम ऑफ एमिशन ऑफ पॉल्यूटिंग गैसेस एंड पार्टिकुलेट्स इनटू स्मॉल डज नॉट एग्जिस्ट. यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, द हाइड्रोलिक टर्बाइन कैन बी स्विच्ड ऑफ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑन करने में और एक थर्मल पावर प्लांट को ऑन करने में उसको बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगता है. ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आप ऑन कर लीजिए. ठीक है, वंस इट इज ऑन देन टर्निंग ऑफ इट अगेन इज अ वेरी सीरियस इशू. ठीक है, लेकिन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में ये इशू नहीं है. दे कैन बी स्टार्टेड विद इन 5 minutes. So if there is a certain demand of load from the load side, we can just add up this power plant into our system to produce electricity. Okay, हटाना है तो इन्हीं को हटा दिया जाए. ठीक है, so that is why this is a very इसका अभी एक और बेनिफिट इसके जरिए से देखेंगे आगे. The hydroelectric power plant is relatively simple in concept and self-contained in operation. Its system reliability is much greater than that of modern power plants. इसके लिए आपको you will appreciate this point when you will revisit both the power plants. अभी तो कोविड का टाइम है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है, नहीं तो we take our students to thermal power plants as well as hydroelectric based power plants. When they see it, the hydraulic power plant is simple in concept. Okay, और क्योंकि चीज सिंपल है तो उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा हो जाती है. ठीक है, अदर पावर प्लांट से कंपोनेंट्स कम होंगे, अपना ऑपरेशन उसका सेल्फ कंटेन्ड है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है. आई मीन बाय दिस वी मीन दैट कि ये एक दफा ये पावर प्लांट इंस्टॉल हो गया सो इट कैन रन फॉर 50 और मोर ईयर्स. ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट दैट कैन रन ओनली फॉर 30 years, अबाउट 30 years. इफेक्टिव लाइफ इनकी इतनी होती है. अभी आप हरदावगंज की तरफ जाएंगे तो उधर नए पावर प्लांट्स हैं जो आधे से ज़्यादा ऐसे पावर प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर जो कि शटडाउन की कगार पे हैं. ठीक है, और एक आपको वहाँ पे खड़ा हुआ मिलेगा स्ट्रक्चर जो कि बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है बिकॉज इट हैज़ गॉन बियॉन्ड इट्स लिमिट. क्योंकि वहाँ पे जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, थर्मल पावर प्लांट में जो बॉयलर होता है, ठीक है, इट हैज़ अ लाइफ. आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट डेवलपिंग क्रैक्स इन इट एंड देयर आर सर्टेन अदर इश्यूज ऑल्सो. अब यहाँ पे चूंकि इसको हम जल्दी से टर्न ऑफ और टर्न ऑन कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहा है, ड्यू टू इट्स ग्रेट ईज टू ऑफ टेकिंग अप एंड थ्रोइंग ऑफ द लोड. ठीक है, जैसे ही लोड बढ़ा आपने ऑन कर दिया, जैसे लोड खत्म कम हुआ तो आपने ऑफ कर दिया, तो ये जो है इसको बहुत आसानी से मिक्स करा जा सकता है थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ. और ये हाइड्रो जो है दैट एक्ट्स एज अ स्पिनिंग रिजर्व. यानी जब न्यूक्लियर और पावर के टर्म्स में हम इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो हाइड्रो को ऐसा रखेंगे, इसको टर्न ऑन एंड ऑफ के लिए रखेंगे, एंड दिस विल कंटिन्यू टू गिव सप्लाई, न्यूक्लियर और थर्मल, बिकॉज दे कैन नॉट बी टर्न ऑन एंड ऑफ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. ठीक है, नाउ मॉडर्न हाइड्रो पावर प्लांट्स हैव हायर एफिशिएंसी देन अदर पावर प्लांट्स. ठीक है, 9th पॉइंट, इससे तो ये अभी एक चीज उसमें डिसएडवांटेज में भी आएगी. एडवांटेज में ये है कि जब आपने पावर प्लांट, ये थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट बना लिया
तो उसके बाद जो आगे की जो इरिगेशन है, उसका फ्लड कंट्रोल है, अफॉरेस्टेशन, नेविगेशन, एक्वाकल्चर, ये सब डेवलप होता है उससे आगे का। लेकिन उससे जो पीछे की जो आपने रिजर्वायर बनाया है, रिजर्वायर इज नथिंग बट वो लार्ज वाटर बॉडी बिहाइंड द डैम, ठीक है, उसको एक्यूमुलेट, उस वाटर को एक्यूमुलेट करने के लिए वी डिस्टर्ब द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ दैट सिस्टम ऑलरेडी, ठीक है। तो बेसिकली बेनिफिट होता है, लेकिन बेनिफिट बाद में आता है, उससे पहले नुकसान काफी बड़ा हो जाता है। सो दिस कैन बी काउंटेड एज अ बेनिफिट, बट दैट इज नॉट अ लार्ज बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन टू दी डिसएडवांटेज दैट वी गेट। इसका सिंपल डिजाइन होने की वजह से एंड ऑपरेशन भी सिंपल होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्किल्ड वर्कर ज्यादा पैसे लेगा, ठीक है, आदमी भी कम चाहिए और स्किल भी कम चाहिए। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ किसके लिए, एडवांटेज किसके लिए है, कंपनी वालों के लिए, जो कंपनी पावर प्रोड्यूस कर रही है उनके लिए। ओके, नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में ये है कि एक दफा बहुत ज्यादा, एक साथ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे भी लोग आपका बिल्स भरते हैं उसके जरिए से आप इनकी भरपाई होती है, राइट, ऐसे ही होगा। तो जितना पैसा खर्च हुआ, रिटर्न इज लो, ठीक है, उसको बहुत टाइम लग रहा है उस पैसे को वापस लाने में, ठीक है। आपने 100 रुपए, इफ यू इन्वेस्ट 100 रुपीज एंड यू विश टू गेट इट बैक एंड यू आर गेटिंग 1 rupee एवरी डे, दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, राइट। तो इसलिए इसका जो है बहुत ज्यादा रिटर्न रेट बहुत लो है। दूसरी चीज, द गेस्टेशन पीरियड इज लार्ज, 10 से 15 साल लगते हैं इसको बनने में। गेस्टेशन पीरियड क्या कहलाता है? गेस्टेशन पीरियड इज दैट पीरियड which is required to build up the hydro project, ठीक है। It takes about 10 to 15 years to build this project, ठीक है, in contrast to other power projects which take lesser time, ठीक है। ये पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन सीजन। फॉर एग्जाम्पल मानसून सीजन में पानी अबंडेंस में होगा, ठीक है, तो अगर रेनफॉल नहीं हुई फॉर एग्जाम्पल किसी सीजन में, तो पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाएगा, वी विल नॉट बी एबल टू जनरेट पावर फ्रॉम दिस हाइड्रो पावर प्लांट। सो ठीक है, अगर पानी एप्रोप्रिएटली अवेलेबल है थ्रू रेन, देन ओनली सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन होगा। अगर नहीं है ऐसा तो फिर जनरेशन विल बी लो फ्रॉम दिस पावर प्लांट। अब ये चूंकि ये पहाड़ों पे होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इट इज ऑन दी माउंटेन्स एंड हिली एरियाज, तो इट इज अवे फ्रॉम द लोड सेंटर। फॉर एग्जाम्पल वी आर जनरेटिंग, फॉर एग्जाम्पल टेहरी, वी आर जनरेटिंग पावर इन टेहरी एंड वी आर गेटिंग दी वी आर सप्लाइंग द लोड इन दिल्ली, सो इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से लॉन्ग ट्रांसमिशन हो रहा है इस पावर का, और उसकी वजह से क्या होगा कि लार्जर लॉसेस होंगे, ट्रांसमिशन लॉसेस विल बी लार्ज, ठीक है। और इसकी वजह से इकोलॉजी ऑफ द एरिया डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए, टेहरी वाला डैम जो था उसको वी वांटेड, इफ दे वांटेड टू क्रिएट अ लार्ज रिजर्वायर। टेहरी वाज अ विलेज, सो दे हैव टू uproot the people from that place and move them to other places, right? So deforestation hota hai, vegetation is destroyed, people have to move from their places, theek hai, and in spite, and people's reaction is another thing. They don't want to move from their place. Of course everybody who is living in one place does not want to move from his place. So creating large power plants is a huge task, okay. So large power plants require large reservoir basically. So now more concentration is on mini, small and micro hydel stations. We will discuss this a little bit later on. What are these? Now coming to the optimization of hydrothermal, as I discussed कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो आपका जल्दी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रो और थर्मल के मिक्स से बेसिकली पावर जनरेशन कर रहे होते हैं। 30% हाइड्रो, 70% थर्मल, या 35% हाइड्रो एंड 65% थर्मल, इस तरीके से लेते हैं।
ठीक है। अब ये पावर जो हाइड्रो पावर प्लांट है दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दी फ्लो ऑफ वाटर, ओके। तो जिस दिन फ्लो ऑफ वाटर लेस है, जब फॉर एग्जाम्पल समर सीजन में पानी कम है, ठीक है, रेनी सीजन में पानी ज़्यादा होगा, तो पानी के जब ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट को बेस लोड देंगे, ठीक है। और स्टीम पावर प्लांट को वी विल बेसिकली विल डील विद दी पीक लोड्स। एंड व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर इज लेस एंड रेन हैज नॉट फॉलन, तो हम क्या करते हैं कि स्टीम को बेस लोड पावर प्लांट बनाते हैं और हाइड्रो को पीक लोड पावर प्लांट बनाते हैं। सो दिस इज आई थिंक वेल एक्सप्लेनेटरी इन इटसेल्फ, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी द सिलेक्शन ऑफ साइट। साइट कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए हाइड्रो पावर प्लांट के लिए? सबसे पहली चीज तो कि वाटर, जितनी हमें पावर की अवेलेबिलिटी जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। द डिजाइन एंड कैपेसिटी ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल एट दिस साइट एंड द पैरामीटर्स दैट आर टू बी कंसिडर्ड, कि पानी कितना अवेलेबल हो सकता है उस जगह पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेहरी को बनाना था, टेहरी डैम को बनाना था, तो उससे पीछे रिजर्वायर बनाना था। उस रिजर्वायर को बनाने के लिए क्या चीज कंसिडर करनी पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल द रन ऑफ डाटा, दैट मीन्स जो पानी रेनफॉल के जरिए से, क्योंकि देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ सीपेज ऑफ दैट वाटर इनटू द लैंड, ठीक है, कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाएगा और कुछ पानी उस रिजर्वायर तक पहुंचेगा। तो व्हाट इज द रन ऑफ डाटा? रन ऑफ मीन्स व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज रनिंग ऑफ फ्रॉम द लैंड टू द वाटर बॉडी, ठीक है। देन प्रेसिपिटेशन बिहेवियर क्या है थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल में बारिश किस किस समय पे होती है, वो बिहेवियर क्या है। मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इन द ईयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पानी कितना मैक्सिमम रहेगा रिजर्वायर के अंदर, ठीक है, और मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। और इस डेटा के अवेलेबल होने से देन वी कैन डिसाइड द कैपेसिटी ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट, ओके। हम पीक लोड प्लांट बेस्ड ऑन थर्मल गैस एंड डीजल, दैट मीन्स हम इसको एज अ पीक लोड पावर प्लांट कितने पीक तक ही जा सकते हैं, ठीक है, कि थर्मल के साथ अगर इसको एडजस्ट किया जाए तो कितने पीक को ये पावर दे सकता है। और फिर पहले से अगर हमें ये चीज इसके वाटर की अमाउंट का पता चल जाता है तो वी कैन प्रोवाइड एडिक्वेट स्पिलवेज, ठीक है। व्हाट आर स्पिलवेज? साइड से पाथ देना ताकि वो पानी जो एक्स्ट्रा पानी है उसको साइड से निकाल दिया जाए। उसके लिए अलग से गेट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेन बहुत ज्यादा हो गई, पानी का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, देन वी नीड टू स्पिल ऑफ द वाटर फ्रॉम द साइड्स, ठीक है। वो पानी हमें स्पिल करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा रिजर्वायर के अंदर से, ताकि ओवर फ्लडिंग ना हो, डैम टूटे नहीं, राइट, डैम के ऊपर से पानी इस साइड पे ना आए। तो व्हाट वी डू इज वी प्रोवाइड साइड लेन्स और साइड पाथ्स टू स्पिल ऑफ दैट वाटर, ठीक है, इनटू द रिवर, ठीक है। So what next? Water storage capacity. The site must be explored in such a way that the water can be stored. There is wide variation in the rainfall throughout the year, so it is always necessary to store the water for continuous generation of power. ठीक है? We mean by this, we are concerned. This talk is concerned regarding the reservoir. कि रिजर्वायर में कितना पानी हमें रखना है थ्रू आउट द ईयर। मिनिमम एक लेवल होगा और मैक्सिमम एक लेवल होगा जो कि हाइट ऑफ द डैम डिसाइड करेगा, राइट। और मिनिमम एक लेवल है, उससे नीचे पानी नहीं जाना चाहिए ताकि कंटिन्यूअस जनरेशन हो उस पावर उससे, ठीक है। तो साइट का सिलेक्शन इस तरीके से रखना है कि पानी अगर हम वहां पे एक्यूमुलेट करें तो उसका एक मिनिमम रेनफॉल के टाइम में या मिनिमम पानी की अवेलेबिलिटी पे उतना लेवल ऑफ पानी रहे ताकि एक कंटिन्यूअस जनरेशन रहे, ओके। Now availability of water head. This I have already discussed कि water head क्या होता है. Water head is basically defined like this. देखो ये डैम है,
डैम के इस साइड पे व्हाट इज दिस इज द रिजर्वायर, हमने पानी आपको यहाँ पे रोक रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम कंडक्ट देते हैं, पाइपलाइन देते हैं और उस पाइपलाइन को नीचे लेकर के आते हैं एंड देन वी फीड इट इनटू द टरबाइन हाउस। और ये टरबाइन बेसिकली अभी हम आगे देखेंगे, दिस टरबाइन इज कनेक्टेड टू द जनरेटर एंड जनरेटर विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी यहाँ पे हमने दिया उसने टरबाइन को रोटेट किया तो पानी तो एक्सपेल होगा, that water that is coming out of this turbine house is this region basically is known as tail race. अच्छा, now behind this dam is the reservoir। और रिजर्वायर कैसे बना? रिजर्वायर इज बेसिकली या तो वो एक पीछे से रिवर आ रही है उस पर हमने बनाया है इस डैम को, या 2-3 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है, यानी 2-3 रिवर्स एक जगह पे आके एक पूरे एरिया में एक रिजर्वायर बना है, राइट। तो ये जो टेल रेस है बेसिकली इट इज अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द प्रीवियस रिवर, पीछे से जो रिवर आ रही है उसी के कंटिन्यूएशन में टेल रेस होती है। तो ये हाइट है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द हाइट। तो मैक्सिमम जो हाइट है रिजर्वायर की और जो टेल रेस का जो रीजन है, जो नीचे जो रीजन है, उस हाइट को बेसिकली हेड बोला जाता है, ओके। अच्छा, मिनिमम हाइट वाटर की कितनी रहनी चाहिए? इतनी रहनी चाहिए कि पाइपलाइन के अंदर हमेशा पानी फ्लो करता रहे, एंड मैक्सिमम हाइट शुड बी फ्रॉम दिस इट शुड बी h1, दैट मींस दैट इज डिटरमाइंड बाय द हेड ऑफ दिस पावर प्लांट, ठीक है। तो वाटर हेड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, अच्छा वाटर हेड अवेलेबल होना चाहिए। फॉर हाइड्रो पावर प्लांट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड एट अ सफिशिएंट हेड। जितना ज्यादा हायर हेड होगा, हायर हेड विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रन द टरबाइंस। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, उतनी कम पानी के से हम इस उतनी जाहिर सी बात है इस हाइट से अगर मैं पानी को डालूंगा तो एक काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर इसकी हाइट और ऊपर हो जाए तो हमारे पास मोर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस टरबाइन को रोटेट कराने के लिए कम पानी चाहिए होगा उस केस में जब हमारी हाइट ऊंची होगी, ओके। तो जितनी हाइट ज्यादा होगी इट इज मच बेटर, ओके। एक्सेसिबिलिटी ऑफ साइट, ये साइट जहां पे हम हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे हैं दैट शुड बी एक्सेसिबल थ्रू रेल, इफ रेल इज नॉट पॉसिबल एटलीस्ट बाय रोड, ओके। वी नीड टू ट्रांसपोर्ट इनिशियली workforce, right, materials to build the dam, and of course there must be a path through which relief can reach that place, okay. Fifth, distance from load center, okay. The site must be close to the load center which will reduce the transmission losses in the system। ये तो हर पावर प्लांट के साथ होता है कि उसका लोड सेंटर जो है वो जितना करीब से करीब होगा उतना ज्यादा कम लॉसेस होंगे, ट्रांसमिशन लॉसेस होंगे। लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज लेस पॉसिबल इन दिस केस बिकॉज आवर साइट इज ऑलवेज फार ऑफ फ्रॉम द लोड सेंटर्स। उत्तराखंड के रीजन में फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द पॉपुलेशन इज वेरी लेस, राइट। वो एक लोड सेंटर है, वहां पे भी बिजली की जरूरत है, राइट। लेकिन दैट लोड सेंटर इज नॉट अ बिग लोड सेंटर क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन वेरी sparse, it is very sparse in popularity. Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, all these places are very heavy, densely populated areas. So these are major load areas in which we have to supply the power. And the region where the power is being generated through hydro power plants is Uttarakhand. So the length, the distance from the power generating station and the load is large. Okay. Now छठा point क्या है कि टाइप ऑफ लैंड ऑफ साइट, जमीन कैसी है जिसमें हम डैम को बनाने वाले हैं। द लैंड मस्ट बी चीप, सबसे पहली चीज इट शुड बी चीप। अक्सर सरकारी जमीनों पर बनाई जाएगा, अगर लोगों को हटाया जा रहा है वहां से तो जितने कम से कम पैसे में उन पब्लिक को हटा के दूसरी जगह प्लेस किया जाएगा, दैट विल बी मच बेटर। तो दैट लैंड एरिया मस्ट बी चीप। सेकेंड, इट शुड बी रॉकी, ठीक है। इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, फर्म, ताकि जब मैं उसका फाउंडेशन बनाऊं, ठीक है, इट शुड बी, या फिर डैम बनाऊं, इट शुड बी, द लैंड मस्ट बी सच दैट इट इज एबल टू बियर दैट लोड, राइट। और दूसरी चीज, जब मैं पानी को रोकूंगा, ठीक है, इतने बड़े वाटर बॉडी को रोकूंगा तो उसका अपना एक वेट होगा। तो जो नीचे जमीन है दैट लैंड एरिया मस्ट बी एबल टू बियर दैट लोड, ओके। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
So I will stop right now over here. We will continue with this topic of hydroelectric power plants with the essential elements that are required for the hydropower plant to function in the next video.